दैट इज क्वेश्चन आता है व्हाट इज एंजाइम काइनेटिक्स, या आता है व्हाट इज द फैक्टर्स व्हिच अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी और एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये सब एक ही क्वेश्चन है, सबका आंसर आपको एक ही जैसा लिखना है, ऐसा नहीं कहीं घबरा जाना है क्योंकि बुक में लिखा रहता है व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, और ऐसा वो क्वेश्चन आ गया तो सीधा सीधा है, लेकिन अगर पूछा कि राइट डाउन द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सेम चीजें हैं, उसी को लिखना है। ठीक है, तो सब चीज एक ही है, आंसर एक ही है, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया है। बट व्हाई इट इज नोन एज काइनेटिक्स, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे काइनेटिक्स डायनेमिक्स, है ना। काइनेटिक्स ही क्यों बोला है, दिस इज द क्वांटिटेटिव। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट डाउन द एंजाइम काइनेटिक्स, तो फर्स्ट you have to describe what is enzyme kinetics. Am I audible? Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक, जहाँ सुनाई नहीं देगा या स्क्रीन नहीं बढ़ेगी वहां बता देना। ठीक है, तो the quantitative measurement of the rates of enzyme catalysis reaction, or we can say the quantitative measurement of factors that affecting enzyme catalysis is known as its enzyme kinetics. Okay, and when it is in the systemic and systematic study. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी हमने पढ़ लिया कि कौन से फैक्टर इसके कुछ जो 7 या 9 फैक्टर्स हैं उससे अलग कुछ अगर इफेक्ट कर रहा है, तो दैट विल नॉट कमिंग अंडर द काइनेटिक्स। So that's why the systematic study of the factors which affecting the enzyme reaction or enzyme activity, that study is known as the enzyme kinetics. And as I told you, kinetics का मतलब क्या होता है, आप लोग दो चीजें पढ़ते थे फिजिक्स में, काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स, है ना। काइनेटिक्स मीन्स जो मूव करता है, मीन्स जिसमें मूवमेंट होता हो, मूवमेंट होता हो मतलब इट चेंज फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन और वन रिएक्शन टू अनदर रिएक्शन, इट मीन्स it is changeable. So if we increase the, जैसे suppose if we increase the temperature, the reaction will be the different. If we increase the pH, the reaction will be the different. So that's why it is known as kinetics. So better, this is one of the branch of enzyme study in which we deal, enzyme kinetics एक अलग subject है ना। enzyme kinetics is one of the science or one of the study or one of the quantitative measurement in which is systematic study of enzyme movement from enzyme factors which affecting the rate of reaction catalysis, enzyme catalysis, that is known as enzyme kinetics. तो किसी तरीके से भी आप इसको define कर सकते हैं, मैंने 3-4 definition बताए, all are correct. ठीक है, so why it is required? It is for analysis, diagnosis and treatment. ठीक है, तो if any imbalance in enzyme activity or rate of reaction, it means it will increase in the body condition and it will ultimately causes the disease. And by the increased amount of that enzyme concentration in body fluids, means in blood or in plasma or in serum, so we can diagnose the disease and we can get the better treatment. Okay, so this is the importance of enzyme kinetics. So for example, where we put in the example of human body, and it is also applicable for the animal body also, that is myocardial infarction disease. It is very common in case of dog and in human also, prostate cancer and damage to the liver. So different enzymes which are important for the diagnosis of diseases. Suppose myocardial infarction है तो मीन्स कौन सा होगा, क्रिएटिनिन काइनेज, बहुत सारे हैं, CK है, फिर LDH है, तो दिस ऑल आर द, लीवर है तो ALT है, so these all are the enzymes which is important to diagnose the different diseases, and for this by this we can treat and diagnose the disease. Okay, so next slide देखते हैं, तो what is enzyme kinetics? ठीक है, तो there is a reaction, as we know that there is a reaction. क्या होगा, दो चीजें मिलकर एक प्रोडक्ट देगा, और जो अगर दो चीजें मिल रही हैं तो प्रोडक्ट कैन बी टू, तो if substrate is A plus B, then product will be the C plus D. So like that, अगर single component है तो A plus B it gives C. Okay, and if it is binds with the enzyme then P plus E. Okay, तो ये सब आपको पता है. तो now
काइनेटिक्स के लिए दो कंपोनेंट होते हैं. इफ सपोज वी आर स्टडिंग द एंजाइम काइनेटिक्स, देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच इज अप्लाई फॉर द काइनेटिक्स. फर्स्ट इज गिव्स फ्री एनर्जी. व्हाट इज गिव्स फ्री एनर्जी? हमें पता है, आपको दैट आपको पता है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन एंड इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सबस्ट्रेट इन द प्रोडक्ट. Simply A plus B is changed to the C, means substrate is converted into product. That energy is applicable. Which energy is applicable? That is gives free energy. Okay. Now, what is activation energy? This is important, and this is important for the enzyme kinetics. Suppose if we ask the question, which is the important energy or which type of energy is working on the enzyme activity or enzyme factors which affecting enzyme kinetics, then you have to write the energy name is activation energy, because activation energy, if it is lowest, then reaction will be the faster. So this is the important factor that affects the enzyme kinetics. So activation energy, it is for the mechanism of reaction and rate of the reaction. And gives free energy, it is already present in the normal reaction. Okay, so this is the difference between two energy, and both are required for the enzyme activity. So how we can define? देखो, gives free energy का ये वाला जो स्लाइड है या ये जो पोर्शन है, हम एक बायो एनर्जेटिक्स एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे तब भी आएगा. तो यहाँ भी पढ़ा देते हैं और वहां भी हम बता देंगे, लेकिन वहां डिटेल पे नहीं बताएंगे. ओके, और आपको पता भी है व्हाट इज फ्री एनर्जी और गिव्स एनर्जी. whatever that is energy that changes delta G is known as gives energy, as we know. Okay, this is the quantitative measure for the direction and the chemical reaction, or we can say that is the concentration of substrate and product will be the equilibrium, and for this it requires the energy that is known as free energy or gives free energy. एक ही बात है. Mathematically we can draw or we can symbolize like delta G is equal to delta G product minus delta G substrate. Okay, so sum of delta Gp, sum of the free energy of the formation of the reaction of product, and delta Gs, it is the sum of the energy of the substrate. So if it is delta G is negative, means the reaction proceed in the forward direction spontaneously. तो this is I think ये सब आपको पता है, आप लोग पढ़ चुके हो, तो इसको मैं और ज्यादा elaborately नहीं पढ़ाऊंगी, but we are interested for the activation energy. So what is the role of that activation energy? As I told you that this is the change in the difference between the energy level from ground state to the transition state. Okay, this is the difference between activation energy. Ka definition is very important. This is the difference between the energy level of the ground state to the ground state and transition state. Okay, ground state means G0 or transition state is equal to GT. It is denoted by GT. So this is the difference. Okay, कैसा difference? मैं आपको अभी graph plot में बताती हूँ. That is this is. तो that is ground state. ठीक है, ground state से transition state के बीच के difference जो है, that is known as activation energy. ठीक है, activation as the name indicate, it activate the reaction. Okay, activation. That's why it is named as activation energy. Okay. Now the function of the catalyst is to increase the rate of reaction. ठीक है, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी को हम कम करेंगे, obviously see the graph. Okay, see the graph. तो मैंने क्या बताया कि what is activation energy? This is the difference level between the transition state and ground state. So if we lowers the activation energy, so enzyme activity will be increased. So enzyme just lowers the activation energy. ठीक है, तो this is very important sentence. ठीक, तो अगर हम catalysis is to increase for the rate of reaction. समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? Activation energy is the difference between transition state and ground state level, and if we increase the activation energy, if we lowers the activation energy, it increases the rate of reaction. Okay, this is important. Now the factors affecting enzyme activity.
व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, तो पूरे किताबों में भी है, आप तो सत्यनारायण की बुक में भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा एंजाइम बहुत अच्छा उसमें दिया हुआ है, बट थोड़ा सा ये नोट्स भी देखना है, और प्लस सत्यनारायण में एक चीज कमी है, वो है डायग्नोस्टिक पार्ट इसका, है ना, तो बाकी सत्यनारायण की बुक में एंजाइम बहुत अच्छा दिया हुआ है, मैंने देखा था, ठीक है, तो आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स, तो फर्स्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सेकेंड इज कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, थर्ड टेम्परेचर, पीएच, product concentration, activators, time and light and radiation. So these all are the factors which affects the enzyme activity or the catalysis. Okay, one by one I will describe. तो इसमें आप लोगों को मैं इसलिए पढ़ने के लिए दे दी थी कि पूरे फालतू चीजें नहीं बताऊंगी, बट आपको लिखने के लिए तो ये सब चाहिए। तो एंजाइम कंसंट्रेशन, आपको पता है व्हाट इज द रिएक्शन, एंड सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। एंजाइम कंसंट्रेशन अगर हम ज्यादा डालते हैं तो व्हाट विल बी द रिएक्शन, क्या होगा आप लोगों को पढ़े हो, बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, इसके पहले हम छोटे छोटे से डेफिनेशंस देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी, अभी आया है ना, रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी, कैसे डिफाइन करोगे रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी? पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है सबस्ट्रेट से। लैंग्वेज तो बहुत इजी है, इसलिए मैंने पढ़ने के लिए दिया था, है ना, ठीक। तो वेलोसिटी रिएक्शन अगर इंक्रीज्ड प्रोपोर्शनल विद द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है, मतलब क्या बोलना चाहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है अगर हम एंजाइम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन कब तक बढ़ेगा, जब तक, देखिए जहां सबस्ट्रेट है सबस्ट्रेट के साथ ही एंजाइम बाइंड करेगा, जब तक सबस्ट्रेट अगर नहीं बढ़ाएंगे तो एंजाइम के बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ना, तो प्रोवाइडेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज अनलिमिटेड, velocity or rate of reaction of increased when we increase the enzyme concentration, but condition is that provided substrate concentration is unlimited। समझ में आया, क्योंकि अगर सबस्ट्रेट बाइंड्स विद द एंजाइम, ठीक है, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, एंजाइम बाइंड्स विद द सबस्ट्रेट, लेकिन अगर सबस्ट्रेट ही नहीं होगा तो वो बाइंड किससे करेगा, तो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर अनलिमिटेड ऑफ सबस्ट्रेट। After that, if we increase the amount of enzyme, then the rate of reaction will be definitely increased. ठीक है, clear है? Now इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं मोल्स लीटर पर सेकेंड में, तो व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट इज नोन एज वी मैक्स। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसका डेफिनेशन पूछते हैं, ठीक है, वाइवा में भी पूछा जाएगा कभी कभी, डिफाइन फॉलोइंग्स, है ना, या फिर ओटी में भी फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स जहां भी होगा, तो बट अपने को पता होना चाहिए व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी मैक्सिमम चेंज इन द प्रोडक्ट और द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन द गिवन एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या हुआ इसका मतलब, सब लोग सो तो नहीं गए हो तुम लोग, देखिए हाँ, तो कौन बताएगा, विशाल? यस मैम। व्हाट इज बी मैक्स? मैम इट इज मैम मैक्सिमम स्पीड एट व्हिच सबस्ट्रेट इज कंसंट्रेटेड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। देख के बता दिया, हाँ, तो अगर क्या होगा तो मैं बता रही थी, हाँ, तो अभी यही पता था और बाकी कुछ नहीं पता है, स्लाइड चेंज करनी चाहिए थी मुझे। एंड व्हाट इज के कैट, यहाँ लिखा है ना नेक्स्ट स्लाइड जो कि आपको दिख रहा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय के कैट? रेट कांस्टेंट लिखा तो है, दिख रहा है दूसरी स्लाइड में, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स formed by each enzyme molecule in unit time is known as catalytic rate constant। ये सब डेफिनेशन एक एक आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है,
ढूंढ के लिखा है, पीपीटी मैंने खुद ढूंढी है, ऐसा नहीं था नेट से ही था, बट ये सब एक एक चीज क्या आनी चाहिए वो ढूंढा है, ठीक है, ताकि आप लोग पढ़ो, ये सब पता नहीं होता है, ठीक है। Vmax को कैसे डिफाइन करेंगे, के कैट को कैसे डिफाइन करेंगे, Km को कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारा जो ग्राफ रहेगा दैट विल बी स्ट्रेट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ना एस शेप होगा ना कुछ होगा, ठीक है। तो अगर भी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एंजाइम तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज्ड, ठीक। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन? इफ क्या होगा, तुम लोगों ने तो पढ़ा है, ग्राफ पे आ जाते हैं। इफ वी if we increase the substrate concentration as I told you, ठीक है, पिछले में क्या बोला था कि सबस्ट्रेट का अनलिमिटेड कंसंट्रेशन रहेगा और उसके साथ हम एंजाइम भी बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। बट इन केस ऑफ सबस्ट्रेट, if we increase the concentration of the substrate, it will increase gradually, but after some time क्या होगा, अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तब भी क्या होगा, वो अनचेंज रहेगा, जैसा कि ऐसे, ठीक है। तो कर्व जो होगा वो हाइपरबोलिक कर्व होगा। तो क्वेश्चन आता है कि इफ वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन what will be happen with the rate of reaction और enzyme kinetics? So अभी बनाएंगे भैया, है तो मैं कहाँ बैठ जाऊँ, इस साइड में बैठ जाऊँ? एक्सक्यूज मी 2 मिनट बस, मैं फैन बंद है, हो जाएगा यहाँ पे, चलिए। सो am I audible? हेलो, हाँ। तो इफ वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देखो, ठीक है, ये जो रेड डॉट है, ठीक है, इसमें जो रेड डॉट है ए, ठीक है, इस पे लिखा हुआ है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आर लो, so only a few enzyme molecule are working and velocity is less, ठीक है। बी में क्या हो गया, एट हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी मींस Km वैल्यू, मैंने आपको बताया Km इज द कांस्टेंट, Michaelis मेंटेन कांस्टेंट, and if we increase it 50% and half, then 50% of enzyme molecules are bound with the substrate, and one time will come where अगर हम बढ़ाते भी हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी नॉट इंक्रीज, ठीक है। तो दैट इज नोन एज saturated point, we can say that, or maximum velocity. So that's why we get the hyperbolic curve, and in half Vmax is equal to क्या हो जाएगा, कभी कभी ये वाला क्वेश्चन आता है that half Vmax is equal to Km, ठीक है, half Vmax is equal to Km, this is true when we increase the substrate. So मैंने एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दिया है, वही बताया है जो मैंने वही वर्डिंग्स पे लिखा है। तो एट हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी मींस Vmax हाफ Vmax, इसमें क्या होगा, 50% ऑफ एंजाइम्स आर अटैच्ड विद द सबस्ट्रेट, ठीक है, व्हिच इज नोन एज द पॉइंट B कर्व, एंड इन सैचुरेटेड पॉइंट मींस इफ वी ऐड मोर सबस्ट्रेट द एंजाइम मॉलिक्यूल आर सैचुरेटेड, दैट इज नोन एज C पॉइंट, that is known as C point, ठीक। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि if we increase the further substrate concentration the maximum velocity will be the Vmax, और हाफ में होगा तो हाफ Vmax, ठीक, 50% में होगा तो उसी को मैंने वर्डिंग्स पे लिखा है। Now what is Michaelis-Menten equation? Michaelis-Menten is a scientist who gives the equation Michaelis-Menten equation, and it is very important, and this is also known as rate equations for enzyme kinetics. It is also known as enzyme catalysis reaction. So what do you mean by that Km? That is known as the constant of, K is stand for constant and it is M for
Michaelis-Menten. So this is known as the Michaelis-Menten constant, which is important for the enzyme kinetics. Okay. So if the formula is, this is very important formula, and here V is equal to velocity, V max, maximum velocity, substrate, Km is the Michaelis-Menten constant plus substrate. Okay, so this is the reaction which is important. Now this is the first order reaction. Can you tell me what do you mean by first order reaction? पढ़ा है आप लोगों ने स्कूल में? Yes, ma'am. हाँ, what do you mean by first order reaction? फर्स्ट ऑर्डर रहता है, सेकेंड ऑर्डर रहता है, जीरो ऑर्डर रहता है? Yes, ma'am. So what do you mean by first order? जो रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट की कांस्टेंट पे डायरेक्टली प्रपोर्शनल. रेट ऑफ रिएक्शन is okay, but how we can define in हम illiterate person है, चलो we don't know about the first, second, third और zero order, but कैसे समझाओगे कि this is first order reaction? कैसे बताएंगे हम? एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी. Okay, we can say that. Another, anyone? और कुछ एक एग्जाम्पल दे दो ना, खत्म हो जाएगी कहानी. गर्ल्स सब सो रही हैं? मैम रेडियोएक्टिव कंसंट्रेशन, सॉरी रिएक्शन. Radioactive reaction. This is the example of first order reaction. No. No. So, what I am asking? Is it clear to you? Can you give one example of first order reaction? अरे यार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं बता पा रहे हो तुम लोग, है? हाँ तो वही एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल एक बता दो, वही तो पूछ रहे हैं. तुमने क्या पढ़ाई की फिर? देने का क्या मतलब हुआ मेरे पहले से? जीरो ऑर्डर बताओ, चलो जीरो ऑर्डर. What do you mean by zero order reaction? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. इट इज ठीक है, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन? हम जिसका रेट रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा. डिपेंड नहीं करेगा. वेरी गुड. नाउ तो जीरो वाले का जो है दैट रिएक्शन जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या कह रहे हैं हम? एट जीरो ऑर्डर हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. ओके, तो Km value is very important factor for enzyme kinetics, and the enzyme is denoted by E, substrate by S, and that is form complex, that is ES. ये तो आपको बताया है. तो इसमें जो सब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दिस वन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, आपको पता है सर. तो वी कैन से E प्लस S एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, इट फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट, एंड फिर P प्लस E बनता है, प्रोडक्ट बन जाता है, और E प्लस P. तो हमने इसको क्या दिया? एक एक कांस्टेंट दिया है. थोड़ा धीरे भैया, थोड़ा सा धीरे, नहीं तो मैं कहीं और जाती हूँ क्लास लेने के लिए. वहाँ खाली है क्या बलराम भैया? वहाँ खाली है क्या? यहाँ तो शोर होगा क्या? यहाँ पे शोर होगा? क्लास ले रही हूँ मैं. हाँ ठीक. E प्लस S दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये आपको डिराइव करना भी थोड़ा आना चाहिए, ठीक है? Michaelis-Menten इक्वेशन जो है वो डेरिवेशन आना चाहिए आपको. तो E प्लस S फॉरवर्ड रिएक्शन में द कांस्टेंट इज K1. इफ इट इज इन रिवर्सिबल, फॉरवर्ड के बाद रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ तो दैट इज डिनोटेड बाय K2.
एंड ES फॉर्म K3 कांस्टेंट के साथ एंजाइम प्लस प्रोडक्ट फॉर्मेशन. तो देयर आर 3 कांस्टेंट प्रेजेंट इन एंजाइम reaction kinetics, that is K1, K2 and K3. And Km जो होता है, this is very important, Km is equal to reverse constant, ठीक है, plus forward constant means from enzyme plus product and divided by K1. ठीक है, तो K2 plus K3 divided by K1, या हम इसको K माइनस भी कहते हैं कभी कभी. हम किसी किसी बुक में यहाँ पे K-1 भी लिखा रहता है. ठीक है, रिवर्सिबल क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स रिएक्शन है इसलिए, है ना, बैकवर्ड रिएक्शन है इसलिए. ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट. तो Km इज इक्वल टू K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय K1. Now इसी का derivation है, V is equal to the initial rate of reaction means velocity, S is here the substrate for the initial concentration, Km is equal to Michaelis Menten constant, and Vmax is equal to maximum velocity which attains the high substrate concentration when all molecules of enzyme is occupied, and S is here substrate. So this is the description and this is the main reaction. ये आपको याद होना ही चाहिए. ठीक है, याद होना ही चाहिए, एग्जाम में आया ही गया समझो. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन Km इज इक्वल टू Ks, एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ माजी ने, हाँ ये चैम्बर में आइए ना, इधर इधर एकदम कोने वाला चैम्बर जो है इधर शिफ्ट हो है, सबसे आखिरी में, सीधे आ जाइए. हाँ जहाँ पहले था, पिछले साल जहाँ था वहीं आ जाए. हाँ ठीक है, आ जाए. हाँ सॉरी, तो Km प्लस K कहाँ थे हम, हाफ Vmax मीन्स हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू Vmax सबस्ट्रेट प्लस Km प्लस S, जो कि आपको बताया. तो आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए. ठीक, द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स is reversible reaction by breakdown of the complex to the, आप होल्ड करिए 2 मिनट, है ना, और डाउट है तो इसमें से मैं भी पूछ पढ़िए आप लोग. हमें ऑडिबल, कहाँ गए सब, चले तो नहीं गए? समझ नहीं आता ना ऑनलाइन क्लास में, एक तो फोटो डाल दियो तुम लोग. ओके, माइचेलिस कांस्टेंट जो है, अच्छा हम लोग अभी पढ़ेंगे जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, है ना. चालू हो गया होगा ना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म तो आप लोगों का? हम ग्लाइकोलाइसिस हुआ है अभी. हाँ तब तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज, बताओ फटाफट. हेक्सोकाइनेज में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलता है. हाँ उसके 3-4 डिफरेंस है, बताओ फटाफट. अब तो वो उसको हटा देती हूँ स्लाइड को. हाँ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ एकदम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर तुम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ चुके हो तो. जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो. फर्स्ट तो ये हो गया कि वो तो एंजाइम है, हाँ, लेकिन व्हाट इज ग्लूकोकाइनेज कहाँ होगा और हेक्सोकाइनेज कहाँ होगा? हर सेल के साथ 3-4 डिफरेंस हैं. क्या 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 बेटा, फटाफट. ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना. हेक्सोकाइनेज एक्सो शुगर पे काम करेगा. हाँ, और ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोज. हाँ, कौन सा स्पेसिफिक है लीवर के लिए और कौन सा पूरे ऑर्गन्स में रहता है, दूसरे ऑर्गन्स में रहता है? ग्लूको शायद सिर्फ लिवर में रहता है.
और शायद है, कंफर्म? यस मैम, ग्लूकोज केवल लीवर में। शायद ग्लूकोकाइनेज। यस मैम। अच्छा, फिर दूसरा और तीसरा डिफरेंस क्या है? यही एंजाइम वाला ही है। अब खोल देती हूँ स्लाइड। हेक्सोकाइनेज हैज मोर एफिनिटी फॉर द ग्लूकोज देन द ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, hexokinase has more affinity for the glucose than glucokinase। आग लगा दोगे क्या आप लोग? और ग्लूकोकाइनेज का क्या होता है? एफिनिटी ज्यादा होता है। इट मींस व्हाट? इफ एफिनिटी इज हाई मींस हेक्सोकाइनेज की एफिनिटी अगर हाई है, इट मींस क्या होगा? Km वैल्यू कम होगा। याद रखना हमेशा, इफ एफिनिटी इज हायर है तो क्या होगा? एफिनिटी अगर ज्यादा है किसकी? जिस भी एंजाइम की, इट मींस व्हाट? Km वैल्यू जो है इट विल बी लेस। ठीक है, याद रहेगा? सुनाई दिया मैंने क्या बोला? किसी ने हाँ ना कुछ नहीं बोला। तो ग्लूकोज के लिए एफिनिटी है वो हेक्सोकाइनेज की ज्यादा होती है, ठीक है, ग्लूकोकाइनेज के मुकाबले। बट इसलिए जो Km वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? Km वैल्यू ग्लूकोकाइनेज की ज्यादा होगी। हम जिसकी कम, मतलब हेक्सोकाइनेज की कम। याद रहेगा कि आज ही बोल के भूल जाओगे? हम याद रहेगा। वेरी गुड, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है ना, आएगा ही। सोच लो कि आ गया मेन पेपर। नाउ व्हाट इज द सेलिंग फीचर्स ऑफ Km? ये भी